38 people have been killed in the Thane building collapse. 11 children among those who were killed when the illegal 7-story structure came crashing down yesterday evening. 50 people have been injured and rescue operations are still underway. More than 15 hours after the incident, the 7-story structure came up without any permission in less than 2 months. In fact, in 1.5 months on forest land. There was no occupation certificate given to the building, yet many people were staying there. Private tuition classes were also being held on the 2nd floor in complete violation of all rules. A case of negligence has been registered against the builder, contractor and supervisor. But the question is, can municipal authorities escape blame when they took no steps to stop the irregularities? NDTV spoke to a local resident who had even complained against the building in February by sending off a letter to the municipality along with photographs of the structure. If I can just ask Mr. Patil to show us the copy of his complaints. This was reported to on 7th February when the construction of the building started. And also, if he can show us these pictures that he submitted, this is the building that has collapsed. Here in this photograph that Mr. Patil submitted to the authorities, you can actually see the building coming up. And this is the building beside which is still standing today. And this building which has come up has collapsed. 31 people have died. And Mr. Patil today will tell us, sir, आप ये बताइए कि आप कब कंप्लेंट फाइल किए, अथॉरिटीज का क्या रिस्पांस था? 7 फरवरी को मैं फाइल किया, फर्स्ट विथ फोटोज विथ एरियाज नेम, बट मिस्टर राजीव विद नो एक्शन वर टेकन. देन आई विल स्टार्ट ऑन इन 7 मार्च को दिया एरिया का पूरे वार्ड में, ये वार्ड में 64 बी है, पूरे शिलफटा वार्ड में. उसके बारे में फोटो 70 फोटो भेजा और छोटी मोटी कार्रवाई की, लेकिन पूरा लीगल जबरदस्त कौन सा भी कार्रवाई नहीं किया. बाद में 18 मार्च को मैं फाइल किया, जिसमें ये बिल्डिंग का भी फोटो था और पूरे एरिया पूरे वार्ड की बिल्डिंग की भी फोटो दिए. कार्रवाई छात्र मुझे करते थे. इसके लिए जवाबदार व्यक्ति है प्रशासन, महापालिका आयुक्त, इधर के नगर सेवक और इधर के बिल्डर लॉबी. बिल्कुल, आप जैसे बोल रहे हैं, आपके कंप्लेंट में आप एक दिखा सकते हैं, आपने बिल्कुल कंप्लेंट किया है. चीफ मिनिस्टर को भी दिया है. A copy was sent to the chief minister as well. To the chief minister's office. On 19 and also on 73B. So with photos. With photos, with all these. Actually, you can see this gentleman here had complained. He had sent letters not just to the local municipal authorities but to the chief minister's office as well. And there has been no action. And today we have 31 people dying. मंगल जी ये बताइए, 31 लोग आज मर गए. आपने तो ये एक तरीके से इनको ये होने से रोकने के लिए बोला था, इन्होंने नहीं सुना. आज आप इनको क्या कहना चाहेंगे? ये तो ठीक, अगर ऐसे 100 बिल्डिंग बन रहे हैं, अरे अर्थ के बाद 2 पॉइंट का भी आ सकते हैं, तो पूरी की पूरी बिल्डिंग जा सकती है और 1000 लोग मर सकते हैं. इसके लिए एक झटका में सबके साथ हो सकता है. इसके लिए पूरा प्रशासन जवाबदार है. देखिए, जो बिल्डर जिसने बांध काम किया है उसके खिलाफ हमने गुनाह दाखिल किया है और बाकी इन्वेस्टिगेशन में जो कुछ होगा, जो भी जिम्मेदार होंगे उनके खिलाफ पूरे के पूरे एडमिनिस्ट्रेशन जो है और पुलिस मिलकर के जिसके बारे में जो भी उचित होगा वो कार्रवाई की जाएगी. हादसा तो बहुत गंभीर है, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन ऐसे भविष्य काल में अगर इन हादसों से बचना है तो मेरे ख्याल से प्रशासन को कड़ी से कड़ी कार्रवाई इसके आगे करनी पड़ेगी, क्योंकि मुमरा और इस एरिया में इतने सारे अनऑथराइज बिल्डिंग्स हो गए हैं कि अगर हर एक धोखा अगर धोखे से टलना ही है तो इसके ऊपर बहुत गंभीरता से कार्रवाई करनी पड़ेगी. And we also spoke on the phone to the mayor of Thane, Harish Chandra Patil, who said action will be taken. इसका पूरा अहवाल मांगा है मैंने. जो इसमें रहेंगे उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी. और ये जो 2 बिल्डर है उनके ऊपर तो मैंने मांग किया है कि कुछ भी करके हम लोग शासन को भी इसका मांग कर रहे हैं कि इस बिल्डर को फांसी होनी चाहिए. ऐसा जब तक ये नहीं होगा तब तक ये काम ऐसे इलीगल रुका नहीं जाएगा, ऐसे मुझे लगता है. मुमरा में और ये जो चालू है यहाँ पे जो सिलपाटा और यहाँ पे जो चालू है, इसके ऊपर सीरियस एक्शन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे ऐसे बहुत से बार हुआ है और हम लोग हमेशा प्रशासन ऐसे स्टैंडिंग कमेटी में हर टाइम इस बात का चर्चा होता है और हम लोग सीरियस एक्शन लेने के लिए बारे में इनको हमेशा बताया जाता है. मुझे समझ में नहीं आता है 7 माले की बिल्डिंग खड़ी होती है और हमारा प्रशासन क्या कर रहा है.